Praise the Lord, everyone. Welcome to Sunday Church. We're so excited to have you joining us this morning. Come on, let's just say the Lord's Prayer this morning together just to invite his presence. So that should be coming up on your screen right about now. Amen. Come on, let's say it together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen, amen. Come on, let's just turn our hearts to now a time of praise and worship as we invite the team up and really just go after his presence this morning. A very warm welcome from Father's Care Church. Thank you for tuning in wherever you guys are tuning in from. Church, it is said that the Lord resides in the praises of his people. So wherever you are, look to the camera, guys, look into your TV sets, and open your hearts, your minds, and your voices as if one church will praise him together. Amen? Let us sing and praise, worship in his name. You're a mighty God. You are a mighty God. We sing. You are a mighty God. Mighty God, mighty God. Yes, you are a mighty God. Come on, church, sing with me. Sing in one name. You are a mighty God. Yes, you are. You are a mighty God. My Lord, you are. Mighty God, mighty God. Yes, you are a mighty God. We sing one name.
bow our heads down, church. Let us enter that holy place where it's you and God, oh Lord. We bear our hearts to you in your name. Yes, Lord. मेरा यीशु है कितना उसके जैसा वो ही है उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तू है मेरा खुदा मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा वो ही है उसके चरणों में सजदा उसे आके स्लो या है इंसान जो तुम उसे हाथ करे या है इंसान जो तुम उसे आँख करे या है इंसान जो तुम उसे हाथ करे मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा वो ही है उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तू है मेरा खुदा हालेलुया हालेलुया Hallelujah, yes, Lord, we say we praise your name, Father God, for I can't get enough of your love in your face, Lord. I've seen your love, Lord. I have seen your grace, Lord. And I can't get enough. Oh, I can't get enough of your amazing love, Jesus.
No, I can't walk away, my Lord. No, I can't walk away, for I have seen your face. Jesus, I can't walk away, my Lord. And I just want to be where you are, and I just want to be near your heart. There is nothing like your love. Oh Lord, I sing. There is nothing like your love. Oh, in the whole wide world. Raise up your hands and sing with me, because I can't get enough. No, I can't get enough. No, I can't get enough, Jesus. No, I can't get enough of your amazing love, Father God. Of your amazing love. Jesus, hear my prayer. Jesus, I can't get enough. No, I can't walk away from you, Lord. I can't walk away. Oh Lord, I sing to you. No, I can't walk away, for I have seen your face, Father God. For I have seen your face. Oh Lord, your grace, Lord. Jesus, I can't walk away, and I just want to be where you are, Lord, with all my heart. And I just want to be where you are. We sing, Lord, and I just want to be near. Father, Lord, hear my prayer, Lord. There is nothing like your love, oh Lord. There is nothing like your, and I just want to be where you are, Lord. Every time, all the time, hear my prayer. I just want to be where you are. And I just want to be near. And I just want to be near your heart. Oh Lord, we say, there is nothing like your love, Lord. There is nothing like your love. Oh, in the whole wide world. Oh Lord, I have gone years not knowing your love, Father God. I have gone years not knowing your grace, oh Lord. But you have set me free, Father, Lord. You have broken the shackles of imprisonment, Father, Lord, with your love, Lord. With your grace, Lord. With your forgiveness, Lord. And as I sing, Lord, I sing with one heart, Lord. Knowing the love that only you can give me, Lord. No one can give me, Lord. Unlocking the key to my heart, Lord. I sing holy. I sing holy. I sing holy, Lord. I sing holy. Holy, 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 holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I sing holy, 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 holy. Jesus, I sing with me, church. Wherever you are, wherever in the world you're listening to this, sing with us together.
as we sing, Holy, my Lord. Holy, holy, Jesus, I love. We sing, we give you all the glory, Lord. All the glory we sing. We give you all the glory. All the, yes, Lord. In your name we sing, Lord. We give you all the praises. All the glory. Jesus, I love you. Jesus, I love. As we sing, I just want to be where you are. I just want to be where you are. And I just want to be near your heart. My Lord, we sing, there is nothing like your love, my Lord. There is nothing like your love. And I just want to be where you are, Father God. Oh Lord, I sing your praise. We worship you. And I just want to be near your heart. My Lord, there is nothing like your love. Oh Lord, we sing, there is nothing like your love. Oh, the whole wide world. In your whole wide world. In the whole wide world. We thank you, Jesus, Lord. Abba Father, we thank you for the love that only a Father can give, oh Lord. Unlock our deepest desires, oh Lord, as we come to you, oh Lord. We seek your presence and your praise and your healing reign and your anointing, Father, Lord. Lord, for too long we have turned away from you, Lord. But Lord, if anything happens today, Lord, we declare with one voice as one church, oh Lord, that we can't get enough of you, Father. We can't get enough of your smile, Father, Lord. We can't get enough of your love, Father God. Enough of your revelation, Lord. Enough of your voice, oh Lord. May we seek this, Lord. May you be our North Star in everything we do, Lord. Everything that we are, Lord, is because of you, oh Lord. You have unlocked us from the prison, oh Lord. From the shackles, oh Lord. We know that because of you we are alive, and because of your word, it is manifested within you, Lord. Lord, give us anointing, Lord, so that we may see what you want us to see, Lord. And we ask all of this, Lord, in the one power that is your name, Lord. In your name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, church, for joining us today in our praise. I will now ask Senior Pastor George to come and speak for a word that's in season. Amen. प्रभु की जय। हम आप सभी को स्वागत करते हैं जहाँ से भी आप जुड़े हो आज सुबह। ये बहुत ख़ास दिन है जबकि हम प्रभु यीशु का वचन को सुनते हैं। और आज हम देखेंगे जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। इसमें इस प्रकार लिखा है, ऑन द थर्ड डे देयर वाज अ वेडिंग इन काना ऑफ गैलिली एंड द मदर ऑफ जीसस वाज देयर। नाउ बोथ Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Now there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, "Fill the water pots with water," and they filled them up to the brim.
And when he said to them, "Draw some out now and take it to the master of the feast." And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom, and he said to him, "Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have drunk well, then the inferior. You have kept the good wine until now." Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you for these words. I pray, God, that you'll touch many hearts around the world. Lord, you'll speak to us individually and collectively this morning. We bow before you to give you all the glory and honor in Jesus' name. And everybody said, Amen. परमेश्वर के वचन आज जब हम देखते हैं, और ये उस जगह की बात है जहाँ पर एक शादी है, और इस शादी में बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु को निमंत्रण दी गई थी। जब भी कभी शादी होता है गांव में या शहरों में, लोग बड़े खुशी से और बहुत मेहनत करते हैं, और कई दिनों से ये तैयारी होता है। अगर किसी के घर पर शादी है तो कम से कम 6 से 8 या 1 साल लगता है इस तैयारी में। इट्स अ टाइम ऑफ जॉय, और सभी लोग खुशी मनाते हैं और एक उम्मीद रखते हैं कि हम इस शादी में भाग लेंगे। नए नए कपड़े लोग सिलवाते हैं और नए नए चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि ये शादी है, शादी का माहौल है। जहाँ पर शादी होता है लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और ये खुशी के माहौल में एक ऐसा घटना होता है जो मैं आपके सामने लाता हूँ। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु को निमंत्रण दिया गया, और उसके साथ में उसके चेले लोग जो है, उसके डिसाइपल्स है, दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड, और सभी लोग ने मिलकर और इसी भीड़ में और इस शादी में मौजूद थे। इन सब के मौजूदगी के बीच में एक आवाज़ आता है, एक पता चलता है अचानक से कि उस शादी में जो वाइन सर्व करते हैं लोग, डाकरस, जब भी कभी मेहमान आता है घर पर तो वो लोग उनको स्वागत के लिए वो डाकरस सबसे पहले सर्व करते हैं। जैसे कई एक शादी में आप गए हैं और देखते हैं कि चाय की सर्विंग होता है, कोई चाय देता है, कोई पानी पिलाता है, मेहमानों को वेलकम करते हैं किस प्रकार से। और इन लोगों के बीच में इस बात जहाँ से है इज़राइल का, उसमें उस देश में उनका जो रिवाज है, जो कल्चर है, अगर आप के घर पर शादी है और वो मान सम्मान जो तुम देते हो उन आए हुए मेहमानों को, सभी को आप वाइन से स्वागत करते हैं। और इस घर में, इस घराने में बाइबल कहता है कि अचानक से पता चलता है कि वाइन ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत ज़्यादा लोग आए होंगे, और ये वाइन जो है ख़त्म हो गया। तुम जानते हो, जब 2000 साल पहले जब आप देखते हैं इस कहानी को, ये घटना को, उस समय ऐसा नहीं है कि जो आज है कि अगर घर पर कुछ ख़त्म हो जाता है तो आप बगल दुकान से, शॉप से जाकर ले लेते हैं। ये उस जगह की बात है जबकि मीलों मील दूर तक कोई दुकान, कोई एक जगह आप नहीं जाकर ला सकते हैं। इन लोगों का जो सफ़र उस समय था वो कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का सफ़र होता था। उनके घर से जाकर किसी चीज़ लेकर वापस लौटना वो बहुत समय लगता था। अब ऐसा समय में आप क्या करोगे? थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे माहौल में फंस जाते हो, आप क्या करोगे? How would you react to this situation? बाइबल कहता है कि इस माहौल में प्रभु यीशु को निमंत्रण दिया गया।
इस माहौल में उसके चेले लोग भी आए। मैं एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ, जब भी कभी घर पर कुछ ऐसा बड़ा काम हो, शादी ब्याह का बात है, कोई एक फंक्शन है, कोई बर्थडेज भी मनाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो आपका फ्रेंड, आपके दोस्त होंगे, जो धार्मिक लोग हैं, इन लोगों के मौजूदगी में बहुत कुछ बदलता है। इन लोगों के होना आपके माहौल में वो बहुत अच्छा बात है। बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि क्या हो सकता है, अचानक से क्या होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस घटना से हम ये सीखते हैं कि ये जो धार्मिक लोग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, दे आर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, ये आपको सलाह देगा। जब भी कभी कोई घटना होता है किसी के भी जीवन में, हम लोग दौड़ते हैं वो अपने यार दोस्त से, जो भी है, चाहे वो प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, बाइबल के नॉलेज है नहीं है, जैसे भी है, हम अपने दुख को उन लोगों से शेयर करते हैं। और अंत में पता चलता है कि वो खुद दुखी है, दूसरों को क्या सलाह दे सकता। परमेश्वर के वचन कहता है, ये जो धार्मिक लोग होते हैं, ये परमेश्वर के राज के खोजी बनता है। मैथ्यू 6:33 में बाइबल कहता है कि सीक ye first the kingdom of God and its righteousness and all these things shall be added unto you। ये धार्मिक लोग जो होते हैं, इनका खोज जो है वो परमेश्वर के खोज में रहता है हर समय। कई लोगों का जो शुरुआत है वो परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा होता है, हर दिन, हर रोज। और ऐसे लोग तुम्हारे घर में, परिवार में, शादी में, बर्थडेज में, जो भी है, जो भी कुछ आप मनाते हो, वो त्यौहार है, ऐसे ऐसे त्यौहार में ये लोग के शामिल होना, इन लोग के साथ रहना, इन लोग के साथ में दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। और प्रभु यीशु यहाँ पर कहता है वचन के अनुसार कि हम देखते हैं कि जब वाइन खत्म हो गया, जीसस के माँ जो है वो आकर प्रभु यीशु से कहती है कि इन लोगों के घर में जो वाइन है वो खत्म हो गया। और जो लोग मेहमान आते हैं, वो आ रहे थे उस समय, कि अभी मेहमान आते ही है और उनके स्वागत के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। थोड़ा देर के लिए सोचो, उस घर का क्या बेइज्जती होगा। तुम जानते हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर के बेइज्जती हो या उस व्यक्ति के बेइज्जती हो। हर एक भाई बहन यही चाहते हैं कि तुम्हारा जो मान सम्मान है, इज्जत है, वो बना रहे। ऐसे समय में आप क्या करोगे जबकि अब कोई रास्ता नहीं है? किसी भी प्रकार से वो लोग वाइन वहां पर लाकर नहीं ला सकते, क्योंकि अब कोई भी जगह से मिल नहीं सकता, क्योंकि अब अगर शॉप्स के बारे में सोचे तो बहुत दूर है, वहां नहीं पहुंच सकते आप। ऐसे कठिन समय में जीसस के जो माँ है वो उसके चेलों से कहती है कि प्रभु यीशु जैसा कहता है वैसा ही तुम लोगों ने करना। जैसा प्रभु यीशु कहता है वैसा ही तुम करो, क्योंकि प्रभु यीशु जो बोलेगा वो होगा। वो किसी के जीवन में, किसी के घर में, किसी के घराने में, चाहे वो शादी हो या वो बर्थडेज हो या किसी प्रकार के सेलिब्रेशन हो, जो कुछ भी तुम करते हो, प्रभु यीशु जैसा बोलता है वैसा होता है। दोस्तों, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, ये जो पानी का मटका तुम देखते हो घर के आगे रखल है,
वर्स 6 में, इस मटका में आप पानी से भर दो, और बाइबल कहता है कि अप टू द ब्रीम, यानी कि मुंह तक भर दो। और पानी भरने के बाद अपने चेलों से कहा कि उसमें से एक बाल में निकालकर और ले जाकर भोज के प्रधान जो है उसको दो, और उससे कहो कि इसको चख कर देखे। ख्याल करना दोस्तों, ये पानी है, ये सादा पानी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इस पानी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस पानी में 3 चीज मैं बताना चाहता हूं। इस पानी में कोई रंग नहीं है, इसमें कोई महक नहीं है, इस पानी में कोई स्वाद नहीं है। 3 important things to note. You'll always find that water is tasteless, colorless, and there is no smell in water. It's just plain, simple water. And Jesus is asking his disciples to fill those water pots with water up to the brim. उस मटकों को पानी से तुम भर दो, जिस पानी में कुछ नहीं है, और वो पानी से उसको भर दो। और बाइबल कहता है ये मटका उस कारण रखा गया कि इसमें जो यहूदी लोग थे, इसमें पानी भरकर और ये अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, सेंटिफिकेशन के लिए रखते थे। ये अंदर से जो साफ करना है। तुम जानते हो आज जिस पानी की बात ये करता है, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन कहता है कि इफिशियंस 5:26 में कि वो पानी जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर वचन से तुम अपने आप को आज क्लेंस कर सकते हो, साफ कर सकते हो। अपने आप को अंदर से तुम साफ करते हो। कई बार हम लोग बहुत से जगह मैंने ये भी देखा है, लोग जब किसी प्रकार के भक्ति करने के लिए घर से निकलते हैं तो नहा धोकर साफ होकर वो ऐसे खास कामों में भाग लेते हैं। मैं इस सुबह आज ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें बाहर से साफ होने का जरूरत नहीं है कि हम बाहर से कैसे लगे। हम जो बाइबल कहता है कि परमेश्वर के जो वचन है, वो वचन जो 2 धार तलवार है, और वो वचन को लेकर तुम अपने अंदर के जो महल है, हर एक इंसान में उसके अंदर जो हृदय है वो साफ करना जरूरी है। बाहर से नहीं, बाहर से जो हम साफ करते हैं अपने आप को, वो सिर्फ अपने आप को अच्छा फील करने के लिए कि मैं साफ हूं, अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रभु जो देखता है, प्रभु यीशु जब साफ करता किसी को, वो उसके अंदर से साफ करता है। When Jesus cleanses somebody, he cleanses you from inside out. Many a times when we want to feel good that we are pure and spotless, we take shower and we pretend that we are spotless and pure and clean. Bible is talking about inner cleaning. How do you clean inside? अपने अंदर तुम कैसे साफ कर सकते हो? बाहर के महल जो है वो तो हम साबुन से धो लेते हैं, शैम्पू से, जो भी कुछ है। लेकिन अंदर के जो महल है, जब हमारा हृदय वो बोझ से दबा है, वो दुख, मुसीबत, वो नफरत, वो जलन, वो कपट, जो भी कुछ है अंदर है, जो मनों में है, दिलों में है, उसको तुम कैसे साफ करोगे?
बाइबल कहता है कि परमेश्वर के वचन जो है, द वर्ड ऑफ गॉड which is living and powerful, word of God which is sharper than double-edged sword, which pierces even to the division of soul and spirit. The word of God which knows the intents of your heart and your thought life. It controls your thought life. That word, वो वचन से तुम अंदर साफ कर सकते हो. So ये जो मटका रखा हुआ था, वो उस काम के लिए था कि लोगों को साफ करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए. बाइबल कहता है कि जब ये भोज के प्रधान तक वो पानी को पहुंचाया गया और भोज के प्रधान उस पानी को लिया और उसको चखा, he tasted the water. धर्मशास्त्र कहता है कि जिस घड़ी उसने उसको टेस्ट किया वो घबरा गया. तुम जानते हो जब भी कभी शादी है या कुछ भी ऐसा फंक्शन है, कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होता है तो सबसे पहले वो भोज के प्रधान को मालूम रहता है कि ये ख़त्म हो गया. So the master of the feast knew that they ran out of wine. When he tasted that water, it was turned into wine. He was surprised, he was shocked. Today, this morning, I want to let you know, हमारा जो जीवन है, इंसान का जो जीवन है, बिना प्रभु यीशु को अपनाने से, बिना प्रभु यीशु को पाने से हमारा जीवन एक सादा जीवन रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली खोखला जिंदगी है. बस तुम सुबह उठते हो, अपने नौकरी पर जाते हो, वापस घर आते हो. Day in, day out, you are the same, nothing changes. But when Jesus speaks over your life, जब प्रभु यीशु अपने वचन को तुम्हारे अंदर डालता है, the same plain water that had no smell, no color, no taste, now it's changed into wine. और जो वाइन है उसमें एक रंग आए, जो रंग आता है, जो लाल रंग आप देखते हो, उस वाइन में वो रंग आता है, उसमें एक कला आता है, उसमें एक रंग तुम जब देखते हो तुम पहचान सकते हो कि ये पानी नहीं है, ये बदला हुआ है, और उसमें एक स्वाद आता है. There is a taste in that wine. And the Bible says there's a smell in that wine. दूर दूर से तुम्हें वो महक आएगा. When you receive Jesus in your life, when you invite him into your life, your life changes like that wine. From unknown to well known. Your life will have color. It'll be a colorful life. You'll be known by many around the world. तुम्हारा जो जीवन है, जिस घड़ी तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो, अपने जीवन में उसको निमंत्रण देते हो, लाते हो, पुकारते हो, अपना मसीहा बनाते हो, अपना राजा को समान उसको जब देखते हो, बाइबल कहता है कि तुम्हारा जीवन वो सादा पानी के तरह से बदल कर तुम्हारे जीवन में एक रंग लाता है, एक महक आता है. तुम्हारे जो यार दोस्त है, जो भी लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हें जानना पसंद करेगा. तुम्हारे साथ लोग अगर थोड़ी देर तक रहे, 1-2 घंटे अगर बात किया, साथ में टाइम बिताया,
आप देखोगे कि लोग तुम्हारे साथ रहने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे कि 2-4 मिनट हम उससे मिल ले, बात कर ले, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है उसमें प्रभु यीशु आ गया। अब जब प्रभु यीशु आता है तो अब तुम्हारा जीवन कल तक जैसे था उस पानी के समान, जिसमें कोई रंग नहीं, जिसमें कोई खुशबू नहीं, जिसमें कोई मीनिंग नहीं, आज तुम्हारा जीवन उस दाखरस के द्वारा बदलता है, जिसमें एक खुशबू है, जिसमें एक स्वाद है और जिसमें एक रंग है। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आज, और इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जिसके भी जीवन में आता है उसका जीवन बदल जाता है। बाइबल कहता है कि जो मास्टर ऑफ द फीस्ट था, जो भोज के प्रधान था, उसने एक बहुत अच्छा सवाल किया। In verse 10 he said, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. तुम जानते हो जब भी हमारे घर पर कोई आता है तो we want to give the very best, right? हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक इंसान यही चाहता है कि हम अपने घर, अपने मेहमान को जब घर बुलाते हैं तो उन्हें हम अपने सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। बैठने के लिए, उनके भोजन के लिए, सब कुछ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देयर इज नो रूम फॉर सेकंड बेस्ट, क्योंकि आप अपने मेहमान को, अपने लोगों को पसंद करते हो, इसीलिए आपने निमंत्रण दिया, इसीलिए आप उनको अपने घर बुलाया। भोज के प्रधान ये सवाल करता है कि जब भी कभी तुम्हारे घर में कोई आता है, तुम हर समय अच्छे से अच्छे चीज को उनको देना चाहते हो। You always desire to give the best of the best. लेकिन ये कैसे हुआ कि अंतिम समय तक तुम्हारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाइन है? ये दाखरस कैसे है हो सकता है? हम लोग तो कई शादी में जाते हैं, शुरू में अच्छा अच्छा देता है, जब लोग को थोड़ा नशा हो जाता है तो उसके बाद में कोई भी वाइन चलता है। लेकिन आप तो जो सही है, जो सबसे सुंदर आखिरी तक है। तुम जानते हो प्रभु यीशु में जब तुम आते हो क्या होता है? Bible says that he is same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु कल, आज और युगानी युग तक एक सा है। उसके मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु को तुम अपनाते हो, प्रभु यीशु को अपने जीवन में लाते हो, तुम्हारा जीवन में एक नई जीवन शुरू होता है। शुरू से लेकर अंत तक एक नई मंजिल, एक नई ऊंचाई पर आप पहुंचते हो। और जैसा तुम शुरू करते हो वैसा ही तुम खत्म करोगे। ऐसा नहीं है कि कल तुम जाकर बीच में गिरता है और वो फिर उठने के नाम नहीं। ऐसा नहीं होता है। प्रभु यीशु जब आता है तुम्हारे साथ साथ चलता है। वो उसने कहा वचन में, ना मैं तुम्हारे साथ कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु जब तुम्हारे अंदर आता है तो परमेश्वर का जो राज है तुम उसमें प्रवेश करते हो। बाइबल कहता है कि लूक 17:21 में कि परमेश्वर के राज हर एक मानव जाति के अंदर में है। तुम्हें परमेश्वर के राज खोजने के लिए किसी दूर नहीं जाना है, सिर्फ प्रभु यीशु को निमंत्रण देना है। जिस घड़ी प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर आता है, जब तुम स्वीकार करते हो, बाइबल कहता है उसी घड़ी जो परमेश्वर के राज तुम्हारे अंदर में है। परमेश्वर के राज में the righteousness of God is inside of you, inside of every man. Galatians 5:22 says, all the fruits that you see
love, peace, joy. It's all inside of you. It's all there. The moment you receive Christ this morning, all these gifts are available for you and it's to you. प्रभु यीशु का पवित्र वचन कहता है कि जब भी कभी तुम परमेश्वर के आज स्वीकार करते हो, सुबह अपने अंदर में उसको बुलाते हो, प्रभु यीशु वो प्रवेश करता है तुम्हारे अंदर, और जब वो आता है तो तुम्हारा जीवन जो है वो बदल जाता है। जो तुम कल तक था वो आज नहीं रहेगा। तुम्हारा एक नई शुरुआत, एक नई मंजिल और नए लोग और कई लोग तुम्हें जानने की कोशिश करेगा। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारा जीवन बदलता है। जिस प्रकार उसने पानी को दाखरस में बदला, उसी प्रकार हमारा सादा जीवन और परमेश्वर एक महिमा से भरा जीवन में बदलेगा, एक आशीष भरा जीवन में बदलेगा, एक खुशहाली, एक प्रेम और शांति भरा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। तो आइए, क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप जहां भी है, जहां भी है, आप अपने हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाएं। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना में परमेश्वर आपके हृदय को छुएगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, जो दया से भरा है, हे हमारे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, आज कई लोग अपने हृदय में तुझे चाहता है प्रभु यीशु, तुझे स्वीकार करना चाहता है, तुझे प्राप्त करना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में उस चमत्कार को देखना चाहते हैं, उस मिरेकल्स के लिए वेट करते हैं। प्रभु आज हर एक के मनों से तू बातें कर, हर एक के मन को तू छू ले प्रभु यीशु, ताकि मेरे परमेश्वर, तुम्हारे प्यारे लोग जहां कहीं भी इस धरती पर है, परमेश्वर तुम्हारी महिमा को देखे। जिस प्रकार तूने पानी को दाखरस में बदला, आज उसी प्रकार मेरे यीशु इन तमाम लोगों के जीवन को तू बदल दे प्रभु। धन्यवाद देते मुक्तिदाता, इस प्रार्थना को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम चाहते हैं, आमीन। I believe in you. I believe you rose again. And I believe that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. We sing, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name
Thank you guys for joining us today, and I hope that word was a word in season for you. So we're going to just go through the declaration together, so join me right now as it comes up on your screen. Okay, let's declare it together. 2020 is my year of new wine. I am living a surrendered life to God's given vision, wisdom, and purpose. I am His vessel, a new wineskin to receive, conceive, and give birth to the new He wants to do in and through me. He is enlarging my capacity to receive all that He has in store for me. Jesus, pour this new wine out of me that will draw souls from the four corners of this earth into your kingdom. Teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Help me to live, love, and serve like you, Jesus, that it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. My body is your temple of the Holy Spirit. Not my will, but yours be done. Thank you, Lord, that you have crowned 2020 with your goodness, and your path for me is dripping with an overflow of your abundance. 2020 marks a new era, a new dimension, propelling me to the fulfillment of my destiny. This is my year. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Thank you guys so much for joining us today, and be sure to tune in next week. Same time, same place. Stay blessed.